A very good evening, all. Here we are discussing class 8th NCRT for the social science, that is Indian polity. First, as we have discussed it already, that the NCRT, which is supposed to cover the Indian polity only for the UPSC section, but it is my personal perception, whatever, that this NCRT will cover all the sections like Indian society, social justice, internal security, international relations, Indian polity, as well as many topics for the essay and ethics also. Even if you have the better understanding of the Indian society, our political system, our governance system, then you will be able to write good answer in the Indian economy chapter also. So these topics are very vast, these topics must to be understand. And what is my planning, what I'm trying to do, I have already told you guys here that I just want to make you guys understand the various topics which are relevant for the UPSC directly, and second thing, that you can understand their practical approaches which is the demand of the UPSC. So we are right now discussing the marginalization in the society, especially in the Indian society, how they have been marginalized, what are the impacts of such kind of the marginalizations, and after that, what government or society can do to bring them in the mainstream of the development and the society. Yesterday we had discussed the problem of the minorities who have been marginalized, especially the Muslims, and I have asked you guys to discuss the main reasons, and you should try to find out, because it is the application which is required for the civil services examinations. So you need to apply yourself what you have, whatever you have understand. And it is Parvez who is telling us that what are the main reasons for the backwardness of the Muslims in Indian society if we compare with all other religions like the Persians, Jain, Buddhist, Christians, and Hindus, Sikh, of course. Then Muslims are the most backward society. If you are studying their educational status or the health reports or the urban facilities anywhere, then they are the most backward, and we have studied it with all the relevant data yesterday. Now Parvez is talking about the main reasons for the backwardness of the Muslims. So Parvez, it is up to you now. Please elaborate for us. हेलो। Yeah, Parvez. हाँ, यस सर, आवाज आ रही है अभी? Yeah, I'm getting you 100%. सर, जहाँ पे मुस्लिम बैकवर्ड की बात हो रही है तो उसका एक मोटा सा रीजन ये है कि 90 के दशक में जहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा थी, और उसमें साक्षरता कम होने के कारण वो ज्यादातर एजुकेशन जो उनका था वो ओनली फॉर कुरान या मुस्लिम एजुकेशन था, जो उनको यही बताता है मुस्लिम धर्म के गुरु या जो अदर वैसे वो ऐसे ही बताते हैं कि जो भौतिक है, जैसे कि एजुकेशन है या पढ़ाई है, आगे तक की जो पढ़ाई होती है, जो ट्वेल्थ है या ग्रेजुएट है, वहां तक उनको जाने ही नहीं दिया गया। उनको या 10वीं या 12वीं या 7 पास या 10 फेल यहाँ तक ही पढ़ाया जा रहा था। तो मोटा रीजन यही है कि उनको प्रॉपरली एजुकेशन के थ्रू नहीं भेजा जाता है, उनको ओनली फॉर जो कुरान का एजुकेशन है, जो मुस्लिम एजुकेशन, वहां पे ज्यादातर फोकस किया जाता है। और वो बताते हैं कि आपको ये यहाँ काम आ जाएगा, जैसे कि आप शिक्षा कर लो, तो वो ऐसा बताते हैं कि आपको यहाँ पे काम आएगा, जैसे शिक्षा के लिए आप कोई भी नौकरी या वो कर लिया तो आपको बेहतर जिंदगी यहाँ दे दी जाएगी। पर जब आप कुरान का तालीम करते हो, आप कुरान की इबादत करते हो या अल्लाह की इबादत करते हो,
तो आपको यहाँ पे मुश्किल ही होगी, और आगे जाके आपको जब आप मर जाओगे या आप जाओगे तो आपको वहां पे जन्नत मिलेगी। तो सर मोटे तौर पर यही किया जाता है, ये भ्रमित किया जाता है मुस्लिम को, क्योंकि इस चीज से उनका पिछड़ापन ज्यादातर दिख जाता है, एजुकेशन में दिख जाता है, हेल्थ में दिख जाता है। जैसे आज बात होती है मुस्लिम ज्यादातर बच्चे पैदा करते हैं, तो उसी कारण है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है उस चीज का, कि वो कहाँ तक वो हो सके या किस चीज का हो सके। या शादी की बात कर लो, मुस्लिम में शादी 18 साल की लड़की हो जाती है तो 18 साल का लड़का या लड़की हो जाती तो करवा देते हैं शादी। तो वहां पर भी एजुकेशन ही आता है कि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। Okay, that's good observation. But do you really think that the lack of education is the only reason for the more children or greater birth rates? पॉवर्टी भी सर, लैक ऑफ एजुकेशन के साथ साथ पॉवर्टी भी। Poverty. I think that it is the poverty. Poverty. यस सर, मेन रोल। हाँ, अगर हम ये सर कहें कि इसमें गरीबी जो है हाँ वो ज्यादा बड़ा जो है रीजन है। क्योंकि अगर हिंदुओं में भी देखिए तो मैंने चूंकि स्लम्स में काम किया हुआ है, ऐसा कोई स्थापित आंकड़ा तो नहीं है हम लोग के पास, लेकिन मैंने ये देखा कि गरीबी की वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अच्छा सोचिए कि एक गरीब आदमी है, घर में न टीवी है न कुछ है, वो शाम को दिन भर थका हारा लौट करके आया तो उसके पास मनोरंजन के लिए और क्या बचेगा? सर सर इसके लिए जहाँ एक पे और चीज जिम्मेदार है क्या करें? सर, इसके लिए जो मतलब फैमिली हेल्थ केयर रहा, मतलब भारत में जो हेल्थ केयर की सिचुएशन है, पब्लिक हेल्थ केयर, उसका कमजोर होना भी मतलब हिंदू में खास करके, क्योंकि मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि मेरे गांव में जितने मुस्लिम हैं उनमें भी बर्थ रेट ज़्यादा होने का वजह यही है कि लोग पहले जब बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी, तो इस वजह से कि मेरा कोई ऐसा ना हो जाए कि वंश ही खत्म हो जाए, तो ये मतलब ज़्यादा नहीं तो तीन चार बच्चे को पैदा। रुक जाना चाहिए था। लोग बारह बारह, सर मतलब मैं दो कहानी आप लोग को बताता हूँ। एक और रीजन बनता है सर, एक मतलब कि सर बेटा को जरूरी माना जाता है, उस वजह से भी मतलब बढ़ जाता है सर ये आप मतलब बर्थ रेट जो है वो बढ़ता है, नंबर ऑफ। सर मैं कुछ कहूँ क्या? नहीं, वन वन अनिका बोलना चाहती है, लेट अनिका स्पीच। सर इसका मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने का रीजन ये भी था कि जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतने कमाने वाले होंगे। एब्सोल्यूट, सर ये भी पॉसिबल यस सर, ये भी सर इसका रीजन तो इसका एक रीजन गरीबी है। सर गरीबी के साथ आपके साथ साक्षरता भी होनी चाहिए। जब आपके पास नहीं, गरीबी होती है साक्षरता भी पर ऑलरेडी एक्सेप्टेड परवेश, हम लोग उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है, और क्योंकि और एक चीज ये भी है कि निरक्षरता और गरीबी, निर्धनता, यह दोनों आपस में को रिलेट करते हैं। और जिस तरह से एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी तरह से चली गई है, तो इसके और महंगा होने की उम्मीद है। मैं आप लोगों को इवन कि 2 दिन से लगातार आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम द अन अकेडमी कि सर वापस ज्वाइन करिए, एंड दे आर रेडी टू पे अ गुड पैकेज। पर मैंने उनको साफ साफ मना किया कि नहीं भैया अब नहीं करना है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं करना चाहते, तो पर इधर उधर के टालने की कोशिश किए, तो उनको लगा पैसे की वजह से नहीं कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने तकरीबन 4 लाख रुपए का पैकेज मंथली ऑफर किया था। लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं, वो मॉडल सही नहीं है एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन का जो मॉडल अन अकेडमी या बायजूस या तमाम जो बड़ी कोचिंग्स हैं, विजन है, बाजीराव हैं, ये कर क्या रहे हैं कि दे आर चार्जिंग टू मच एंड दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। अभी स्टडी आईक्यू पर दिव्या मैम जो कुछ भी कर रही हैं, स्टडी आईक्यू इज ऑल्सो अ वेंचर, subsidiary venture of the an academy,
उनको बच्चे बोल रहे हैं कि आप सनी लियोनी जैसी लग रही हैं, वो जो है बोल रही हैं, उस पर मुस्कुरा करके कह रही हैं कि हट झूठा। ये अभी 2 दिन पहले का वीडियो है। तो इस तरह के भी कमेंट इसी तरह के कमेंट चल रहे हैं। सर कमेंट तो बहुत अजीब अजीब आते हैं उनके पास, और वो पढ़ के भी बताती है। वो केवल अजीब कमेंट ही पढ़ती है। हाँ, वो कि बच्चे मुझे प्रपोज कर रहे हैं, बच्चे शादी के लिए बोल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट भी वो पढ़ के बताती है। हाँ, कि मैम कल सूट पहन करके आना, मम्मी को दिखाना है कि बहू मिल गई है। तो वो एक तरह से प्रोवोक करती है बच्चों को कि और ज़्यादा लिखो। और ये कहाँ पर है? स्टडी आईक्यू जो है वो वहीं पर है, अनअकैडमी का ही है अभी। तो क्या ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ा जा सकता है? क्या उनके साथ काम किया जाना चाहिए? तो आई फेल्ट इट वेरी बैड। और दूसरी चीज़ है कि जो फीस अनअकैडमी ने बना दी वो इतनी हाई है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बहुत अधिक। तो और इसमें मेरा खुद का भी अपराध है। अनअकैडमी पर पहला टीचर मैं ही हूँ जिसने कि पेड क्लासेस शुरू की थी। करवा दिया लोगों ने, पैसों की जरूरत थी, मैंने कर लिया। तो बड़ी ये दिक्कत की बात है कि निर्धनता आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, और निर्धनता का एक दुष्चक्र होता है। मुझे लगता है कि योगिता मैम की अगर आप लोगों ने क्लासेस इकोनॉमी वाली देखी होंगी तो उसमें उन्होंने जो है गरीबी जहाँ पढ़ाया है वहाँ पर इस संदर्भ में उन्होंने बहुत डिटेल में बात कर रखी है। तो आप महसूस करिए कि जिन घरों में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है वहाँ पर स्कूल जाना एक लग्जरी साबित हो जाएगी। लोग जान बचावें या शिक्षित हों। दूसरे, अनिका ने बड़ा वैलिड पॉइंट इसमें जोड़ा कि अनिका ने ये कहा कि ऐसे जो बच्चे हैं वो अर्निंग हैंड बन जाते हैं, 7 साल 8 साल की उम्र में जो है कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों, निर्धनता, गरीबी। तीसरा, वह एक समाज का पूर्वाग्रह जो कि सूरज पॉइंट जोड़ रहे हैं। अब देखिए, आप 3 लोगों ने 3 अलग अलग पॉइंट्स जोड़े, तीनों पॉइंट्स को एक जगह जोड़ दीजिए, आंसर बहुत खूबसूरत बन जाएगा। परवेश का निर्धनता, शिक्षा, सूरज ने जो 2 पॉइंट्स जोड़े उनमें से सूरज का पहला पॉइंट था कि निर्धनता, और दूसरा पॉइंट सूरज ने जोड़ा सामाजिक व पूर्वाग्रह जिसमें बेटा होना ही चाहिए। सर पब्लिक हेल्थ केयर भी, सर पब्लिक हेल्थ केयर की खराब स्थिति। पब्लिक हेल्थ केयर to somewhere it is related to the poverty, but public health care, इसमें अनिका ने भी बड़ा बढ़िया पॉइंट जोड़ा, वह जो गरीबी का दुष्चक्र है कि मोर हेड्स आर मोर, नहीं, मोर हेड्स आर मोर अर्निंग हेड्स। उसी तर्क के आधार पे वो गरीबी में बोला था सर। हाँ, उसमें लगभग और भी 2-3 तर्क है ना, लेकिन इसको अलग से हाईलाइट किया जाना चाहिए आंसर राइटिंग में। निधि कुछ कहना चाह रही है? निधि नाराज हो गई? नहीं सर, नाराज नहीं हुई मैं। सर यही कहना चाह रही थी कि पहले कृषि ज्यादा होती थी तो सर खेत में काम वगैरह होता था, तो बाहर से बजाय दूसरे मजदूर अपॉइंट करने के तो वो खुद के इतना ज्यादा कर लेते थे कि काम हो सकता था। लेकिन सर ये मैं इस बिहाफ पे बता रही हूँ क्योंकि सर ये ऐसा अपने ही कुछ रिलेटिव्स में मैंने देखा है जिनके 15 से ज्यादा मतलब हैं। तो हमने पूछा भी था कि मतलब इतनी जरूरत ही क्या थी, तो उन्होंने बताया कि पहले जमाने में जैसे मतलब जब इतना ज्यादा काम नहीं हुआ करता था तो घर उनकी जमीन इतनी होती थी कि काम करने के लिए भी कुछ अपना ही होता था, इसलिए मैं कहना चाह रही थी। उन्होंने उसको जो है कवर अप किया, और मुझे ये लगता है कि जो एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है मनोरंजन भी एक बड़ा कारण है। हो सकता है सर, क्योंकि टीवी वगैरह इतना ज्यादा नहीं होता था तब। तो लोग जो है खाली होने के बाद क्या करते हैं?
तो यही एक मनोरंजन था। टीवी क्या करती है कि पति पत्नी को 1 बजे 1:30 बजे तक तो जगाए रखती है। अभी देखो सोशल मीडिया आने के बाद ये और कम हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आपको जो है सपने में भी जगा रही, तो नींद ही हराम कर दी है। अब लोग सेक्स से ज़्यादा जो है आनंद जो है सोशल मीडिया में पाने लगे। दे कैन अवॉइड सेक्स बट दे कैन नॉट अवॉइड द सोशल मीडिया। तो यस पुराने ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, तो लेकिन हमारा जो फोकस पॉइंट है निधि, वो है कि मुसलमानों का पिछड़ा है, इस पर भी कल हम लोग हाँ कह सकते हैं। करेंगे। तो मुसलमानों के पिछड़ेपन में जो है हम लोगों ने बहुत सारे कारण गिने, तो जिसमें एक कारण जो है पर कृषि का जो पॉइंट आपने ऐड किया, तो आई थिंक दैट दिस पॉइंट इज अ लिटिल बिट इररिलेवेंट, क्योंकि मुसलमान आबादी खेती में कितने प्रतिशत है भी ये भी सोचा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुसलमान अपेक्षाकृत खेती में कम होते हैं, हालांकि इसके पीछे मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। सर 5 या 6% ही है, ज्यादा नहीं। ये आंकड़ा कहाँ से है? सब मुसलमान करते कब है खेती? करते कब है खेती? सर ये जब सीजन होता है तब। मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि ये हमारे यहाँ का आंकड़ा बता रहा हूँ, क्या हमारा 3-4 डिस्ट्रिक्ट का नहीं सर, मैंने एक्चुअली में कभी देखा नहीं है ना किसी मुसलमान को खेती वगैरह करते हुए। वो या तो इसमें मदरसों में हर वक्त कुरान वगैरह कुछ करते रहते हैं, या फिर मतलब भेड़ बकरियां वगैरह ज्यादा चराते हैं। मैं एक खेरूत हूँ स्पेशली, मेरे दादा खेरूत ही है। वो क्या होता है? तुमने किसी मुसलमान को दाढ़ी रखते हुए कभी देखा है? कैसे? कभी किसी मुसलमान को दाढ़ी रंगते हुए देखा है कभी? यस सर। हाँ शायद सर, एक बार देखा है। एक बार देखा है। तो इस आधार पर मान लें कि मुसलमान जो है दाढ़ी नहीं रंगते होंगे क्योंकि तुमने नहीं देखा है। नहीं पर सर ज्यादातर ऐसे ही देखा है कि वो नहीं करते हम लोग खेती। समाज के पूर्वाग्रह पढ़ते हैं, तो उनमें से भी एक पूर्वाग्रह है कि मुसलमान ये नहीं करते। जैसे आदिवासियों के बारे में पूर्वाग्रह हमने पढ़ा, वैसे मुसलमानों के मैं जो बोल रहा था कि कृषि नहीं करते, तो मेरे पीछे एक तर्क था कि मुसलमान जिस एरिया से आए वहाँ पर कृषि करना लोग बुरा समझते थे। मुसलमान या उस एरिया में रहने वाले ज्यादातर लोग जो है अपने आप को जो है शिविरों में रखना ज्यादा पसंद करते थे। वो शहरी या ग्रामीण जीवन को बहुत खराब समझते थे। तो जब ये आए भी तो इनका रुझान कृषि की तरफ था। लेकिन अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाइए, आप जिस हरियाणा और पंजाब में रहती हैं, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन अगर मुसलमानों की आबादी को हम उठा करके देखें, तो ये आबादी जो है, ये सही बात है कि कृषि कार्य में कम, लेकिन अगर कृषि में कमी मुस्लिम आबादी के लिए सर, हाँ मुस्लिम आबादी के लिए सर एक पॉइंट था मेरे पास, लेकिन उसको पता नहीं वैलिडेशन दिया जाना चाहिए या नहीं। हालांकि चूंकि मैं सर पूर्णिया के 82 ब्लॉक में भी काम किया हूँ, जहाँ मुस्लिमों की आबादी 80% के आसपास है, उस अनुमंडल में ही पूरे। तो वहाँ मतलब लोगों से भी ये कहते सुना था कि कहते हैं कि वो अल्लाह की खेती के तौर पे इसको लेते हैं, और इसको जी सर, मतलब अल्लाह की खेती का मतलब किस चीज को? वो उनका सीधे ये बच्चे पैदा करना अल्लाह की खेती है। हो सकता है। जब आप ये समझिए कि ये इस तरह की चीजें जो है, वो परवेज सही कह रहा है कि वो आधुनिक शिक्षा वो कम देते हैं, आधुनिक शिक्षा के बजाय। सर खान सर इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा से रिगार्डिंग। वो बताना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की जो कुप्रथाएं हैं या फिर हिंदू मुसलमान में जो अंतर की बातें हैं, वो शिक्षा से ही दूर की जा सकती है, और वो हमारे लिए एक प्रेरणा भी बन रहे हैं सर। वो तो रटा रटा पॉइंट में सब भी बोलेंगे। क्या करें?
ये तो रटा रटाया पॉइंट है, सब सभी कोई बोलेंगे। हाँ, फिर एक चीज है कि अगर खान सर तुम्हारी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, तो अनु खान सर जैसे लोगों के हिसाब से तो लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो तो एंटी वुमेन है पूरी तरह से। खैर, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, मुझे उसमें कोई नो सर, वो उन्हें राखी इतनी लड़कियां बांधती है ना कि उनके हाथ मतलब दर्द होने लगते हैं। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं ठीक करते तो है। उन्हें राखी नहीं बांधा जाता। हाँ, नहीं, ठीक है, पर उन्हें भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तुम्हारे जो तर्क होते हैं कि कभी तुम्हें जो है सदगुरु पसंद आने लगते हैं, कभी तुम्हें खान सर पसंद आने लगते हैं। पता है इसके पीछे की वजह क्या है अनु? तुम शॉर्ट्स बहुत देखती हो, रील्स। कभी इस पर गंभीर चिंतन और अध्ययन किया करो। अगर सिविल सर्विसेज सर उनके ना लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस भी मैंने देखा किसी किसी टॉपिक पे, जैसे हिचकी क्यों आता है, उन्होंने इतने कार्टून फॉर्म में बताया ना सर कि मुझे लगता है कि वो मैं भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो तरीका ही कुछ अजीबो गरीब था, बहुत अनोखा था सर। दैट्स ओके। चलो, अच्छी बात है कि खान सर की जो है प्रशंसक हो, होना भी चाहिए टीचर्स का। लेकिन हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि हम लोग कहाँ पर थे, वो खेती के बारे में। तो जो परवेज बोल रहे हैं कि परवेज का ये कहना है, सॉरी सूरज का, कि वो खेती के तौर पर लेते हैं, और उस पर परवेज ने पहले ही पॉइंट रखा कि ये सारी बातें वो जो है आधुनिक शिक्षा के बजाय वह मदरसे की शिक्षा को जो है सामने रखते हैं। ये दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर होना चाहिए। ये बात वस्तुतः अगर कहा जाए तो आज की तारीख में लगभग हर समाज में बैठती चली जा रही है। क्या यही बात गिरिराज किशोर हिंदुओं के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म जी बढ़ाओ? सर, वो भी बोल रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा कीजिए, हाँ, एक मतलब यहाँ एक वहाँ। खुद गिरिराज किशोर के कितने बच्चे हैं नहीं पता मुझे। इसी तरह से तमाम जो हिंदू, कट्टर हिंदू नेता है, तो ये जब भी धर्म, लोगों के धर्म जब तार्किकता का आधार छोड़ देता है, तब इसी तरह की बात होती है। इस्लाम को जिस तरह से प्रचारित किया गया, उसमें इस्लाम में तर्क की गुंजाइश नहीं रह जाती है, और इसका नुकसान अगर देखेंगे तो इस्लाम को होता है। यही बात आज की तारीख में हिंदुइज्म के साथ भी हो गई है कि हिंदुइज्म में भी हम ये बात करने लगे हैं कि हमने तर्क करना छोड़ दिया है। हम लगातार बाइकॉट कर रहे हैं, हम लगातार जो है गाली गलौज कर रहे हैं, पर हम बनते वही चले जा रहे हैं। जिस शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, शिक्षा का भी मतलब क्या होना चाहिए? शिक्षा का मतलब होना चाहिए कि एक दृष्टिकोण पैदा करें, तो वह दृष्टिकोण आपके सामने आना चाहिए। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी बुराई क्या रही आधुनिक शिक्षा में भी, कि आधुनिक शिक्षा व्यवहारिक समाज के साथ कनेक्ट नहीं करने देती है। आप बिहार में, इलाहाबाद में चले जाइए तो वहां पर क्या कहा जाता है कि आप कमरा बंद करके, खूंटा लगा करके जो है 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा पढ़िए। उस पढ़ाई ने क्या किया है कि पढ़ाई को किताबों में सीमित कर दिया, उसको बाहर नहीं निकलने दिया। जैसे अनु के जो है फेवरेट खान सर हैं, उसी तरह से मेरे फेवरेट जो है कलाम सर हैं। तो कलाम सर जब हम लोग को पढ़ाते थे क्लास में, तो कलाम सर कैसे करते थे? कोई किताब ही नहीं खुलती थी कलाम सर की क्लास में। कलाम सर सिर्फ लाइव लोगों को देखकर ना इंस्पिरेशन मिलता है, और वो लोग भी हमारे आइडियल हो सकते हैं, लेकिन जो जिंदा है ना सर, उनको देखकर ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं उन्हें भी मतलब थोड़ा सा आइडियल मैंने मानती हूँ। कलाम सर को जिंदा देखा है, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनका जो है फैन हूँ। तो उन्होंने कैसे पढ़ाया? उन्होंने जो है किताबों से बाहर निकले, उन्होंने कहा किताब पढ़िए, वो आपका बेसिक्स देते हैं। उसके बाद आप समाज में उसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाइए,
उसके जरिए आप चेंजेस लाने की कोशिश करिए। यही बात जो वर्तमान में स्कूली शिक्षा है, आप सोचिए मैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहा हूँ, सब ग्रेजुएट बैठे हैं यहाँ पर क्लास 8 की एनसीईआरटी आपको चौंकाती है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, रिपब्लिक जैसे कॉन्सेप्ट को ये बेहतर करने की मांग करती है। अब इससे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट आप ग्रेजुएशन के लेवल पर जाकर के कहाँ ढूंढेंगे? तो जब इस्लाम में भी उन्होंने क्या कहा कि एक तो आधुनिक शिक्षा मरी हुई, वो उसका भी विरोध करके जब कुरान तक सीमित कर देना चाहते हैं। और ये बात माननी चाहिए कि कट्टरता अगर सबसे अधिक किसी में है या कट्टर धर्म अगर किसी में है तो वह इस्लाम में है। हालांकि ये पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है कि कट्टरता का एक हिस्सा इस्लाम को अनुशासित भी बनाता है, लेकिन समय की उस धारा को वह रोक भी देता है जहां से उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें मुसलमानों की स्थिति में भी, चाहे उनके पक्के मकान हों, चाहे बिजली घर हो, मतलब घर में बिजली हो, चाहे फिर नल का पानी हो, वो सारी परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो चुका है। और एक और बात जिस पर कि जो है लोग जोर नहीं देते हैं, जिसे समझना चाहिए कि अगर पिछले एक दशक में किसी धर्म का जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है तो वह इस्लाम का ही रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 30 साल में, 40 साल में जो है मुसलमान इतना बढ़ जाएगा, उतना बढ़ जाएगा, पीएफआई वाले 2047 तक कह रहे हैं। लेकिन क्या वस्तुतः जो है हमारे पास आंकड़े हैं, जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से कम नहीं रहा है सब, वो क्या करें? सबसे कम नहीं रहा। घटने का जो दशकीय वृद्धि दर है, उसके घटने की सबसे ज्यादा दर हाँ, है ये मुस्लिम में। आपने थोड़ा मुझे करेक्ट किया। 10 की वृद्धि दर तो सबसे अधिक उन्हीं की है, पर वृद्धि दर में जो जी सर। गिरावट है वह गिरावट सबसे वो ज्यादा मुस्लिम में मुसलमान सबसे की है। तो मतलब ये है कि सर, करेक्शन में चल रहे हैं। हाँ, इस पे कोट करना चाहूंगा। मैंने एक पर्टिकुलर न्यूज एंकर का, जहाँ पे उन्होंने एक पक्ष रखा था, उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये मुद्दा हो रहा था, जब इलेक्शन हो रहा था यूपी का, कि मुसलमान 2050 तक बहुसंख्यक में आ जाएंगे, तो उन्होंने यही मुद्दा कहा था कि जब तक अभी हिंदू है, हिंदू का जो जन्म स्तर अभी अटका दिया जाए और 2050 तक मुसलमान का जो जन्म दर है वो 2 गुना किया जाए, तब 2050 तक वो हो सकते हैं। हाँ, ये तो हिंदू मुसलमान की जनसंख्या बराबर होते होते धरती खत्म हो जाएगी। तुम ये पूरी तरह से गारंटी मान लो। फिर एक चीज कि हमारा मुद्दा ये नहीं है कि किसकी जनसंख्या कितनी है। मेरा मुद्दा ये था कि कल मैंने ये कहा था कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो उस पर जो है चर्चा करने की हम लोगों ने बात कही थी और हम लोग उसी पर जो है अपने आप को फोकस रखें। आज अब वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एनसीईआरटी उठाता हूँ और एनसीईआरटी का जो अगला हिस्सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं उसको जो है वर्ड बाय वर्ड जाने के मूड में नहीं हूँ, तो ये आप लोग को बोर्ड दिख रहा है क्या? नो। आइए जरा देखते हैं कि हाशियाकरण से कैसे निपटते हैं। आज का टॉपिक यही है, हाशियाकरण से निपटना। आप लोग अगर देखेंगे तो पीडीएफ में ये चीज़ दी हुई है, या मैं इसको यहाँ से ले ही लेता हूँ, हाशियाकरण से निपटना।
पहली बार लड़ा। CRT पॉजिटिव, ये हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। तो हाशियाकरण से निपटने की जो तमाम योजना है, इनको हमें किसके स्तर पर देखना है कि समाज और सरकार के। तो हाशियाकरण से निपटना, इसके लिए मुझे लगता है कि जब हमको आंसर राइटिंग करना होगा तो हमें दो तरीके से करना होगा। पहला तो जो है वह होता है कि किसी भी समस्या से निपटने का पहला रास्ता होता है कि जागरूकता बढ़ा करके किया जा सकता है, और दूसरा कहां से किया जा सकता है, जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ कानून बना करके, कानून द्वारा किया जा सकता है। तीसरा एक और है, सहायता प्रदान करके। इसको अगर एक और तरीके से मैं बांटना चाहूं तो मैं इसको बांट सकता हूं कि हाशियाकरण से अगर निपटना है तो इसके दो और तरीके जो है संभव है। पहले को हम कह सकते हैं कि संवैधानिक तरीके से, यानी कि संविधान में जो जिक्र किया गया है संवैधानिक तरीके से, और दूसरा है गैर संवैधानिक, यानी कि जिसका संविधान में जिक्र न, संवैधानिक, गैर संवैधानिक तरीके से। तो ये तरीका हो सकता है। अब संविधान में कहां जिक्र किया गया है कि हाशियाकरण से कैसे निपटा जाए, तो अगर इसका आवे तो इसका सबसे पहला जो जिक्र किया गया है वह मौलिक अधिकारों में किया गया है। मौलिक अधिकारों में कहा किया गया है कि पहली चीज तो ये अनुच्छेद 14 में आ जाता है, जिसमें कहा जाता है कि विधि के समक्ष समता, ये शब्द आपको मिलती है। तो विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कानून की नजर में हर कोई एक बराबर है। जैसे पहले लोगों के साथ अलग अलग भेदभाव किया गया, वैसा अब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 15 कहती है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। वहीं पर आर्टिकल 16 भी इसी बात को कहता है, और वो कहता है कि सरकारी नौकरियों के संबंध में, यानी कि लोक नियोजन में उपरोक्त आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि कुछ आधार बढ़ जाते हैं 16 में, लेकिन मोटे तौर पर उपरोक्त आधार ही हैं। संदर्भ में उपरोक्त आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कि ये भी धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि
छुआछूत का अंत किया जाता है। तो संवैधानिक तौर पर तो छुआछूत का अंत हो गया, लेकिन क्या वास्तविक रूप से छुआछूत का अंत हुआ है? तो हम कहेंगे कि नहीं, वास्तविक रूप से छुआछूत का अंत नहीं हुआ है। इसी पॉइंट को जो है यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है मौलिक अधिकारों के उपयोग के जरिए, कि मौलिक अधिकार आपके साथ किसी भी आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकता है। ये देखिए, इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की विख्यात कवि सोयराबाई का जो है लिखा हुआ एक कविता भी है, और वो कविता बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में, पढ़िएगा। वो महार जाति की थी। महार जाति वही जाति है जिसके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कहते हैं कि काया है दूषित कहना है उनका, और केवल आत्मा है बेदाग। यानी कि काया दूषित है, शरीर दूषित है, और आत्मा बेदाग है। तो कहते हैं कि लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर, है कौन अनुष्ठान वह जिससे शुद्ध होती काया है। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। इसीलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। तो ये इन्होंने जो है इस आधार पर जो है अपनी बात को जो है रखने की कोशिश की है, जो कि समझना चाहिए कि किस तरह से जो है लोग लगातार जो है, अब ये क्या है, इस तरह के लेख के जरिए वह जागरूकता लाने की कोशिश कर रही हैं, वह सोच में बदलाव लाने की कोशिश कर। तो मैंने कहा ना कि कुछ संविधान कानून बना करके बातें होती हैं, और कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कानून के जरिए नहीं, लेकिन लोगों के मध्य में जागरूकता फैला करके होती हैं। जैसे कि कबीर लिखते हैं, कबीर एक साथ हिंदू और मुसलमान दोनों को जो है चैलेंज करते हैं। मुसलमानों को कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ करके मस्जिद लियो चिनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदा, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला करके अल्लाह को बुलाते हो? खुदा बहरा हो गया है क्या? आज जो साहब जो है इतना जोर जोर से जो है खुदा को याद करते हैं, क्या हो अगर किसी दिन धीरे से खुदा ने उनको याद कर लिया? सर इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। कहने के जो अजान पहले, क्योंकि अजान ऐसा नहीं है कि आप खुदा को पुकार रहे हो। अजान इसलिए था, जब पुराने जमानों का मैं बता रहा हूँ, जब रसूल थे उनके जमाने का अजान इसलिए कहा गया था, जोर से ये किया गया था कि जो लोग मुस्लिम हैं, जो अपने काम धंधे में व्यस्त है, तो उनको अजान सुनाने के बाद, अजान सुनाई दे तो उन लोग मदरसे में आए पढ़ा नमाज पढ़ने के लिए, उसीलिए जोर से अजान दिया था। पहले तो चीज समझिए कि मदरसे नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी किसी भी जमाने में। मदरसा मतलब बच्चों का स्कूल होता है। आप मस्जिद का ये हमारे यहाँ मदरसा मस्जिद एक ही बोला जाता है, इसलिए तो गलत है, तो सुधारिए। अगर आपके यहाँ बोला जाता है तो आपके यहाँ गलत बोला जाता है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 चीजें कि चलिए ठीक है, लेकिन ये जो है आज की तारीख में सबके पास घड़ी है, सबको टाइम पता है। ऐसे में जो है लाउड स्पीकर लगा करके चिल्ला चिल्ला करके बोलना, और वो जब लोग अपने यहाँ टीवी वगैरह चला करके बैठे हैं, किसको नमाज सुनाई देता है? अजान सुनाई देता है। सर ये गलत है, जो लाउड स्पीकर पे है वो गलत है, वो उसके खिलाफ मैं भी है ना। तो एक तो जो है वो चीज समझ में नहीं आती है। फिर दूसरी चीज ये है कि अजान सुन करके कितने लोग मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। अगर जुम्मे की नमाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर लोग नमाज के लिए इकट्ठा नहीं होते हैं। बहुत कट्टर लोग जो होंगे वही इकट्ठा होते हैं। तो कबीर उसी को चैलेंज करते हैं। कबीर कहते हैं कि यह आडंबर क्यों है? नमाज पढ़ना तुम्हारे अपने जो है, पहले तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए तब तुम पढ़ो।
ये पता चला कि मन में कोई भाव नहीं है, घड़ी देख करके जा करके नमाज पढ़ करके आ गए, तो क्या वह नमाज खुदा को कबूल होगी? अल्लाह कबूल करेगा तुम्हारा नमाज कि तुम्हारे मन में भाव नहीं है? इसीलिए कहा गया कि जब तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हो और तुम सब कामों से फुर्सत पा जाओ, तो दिन भर की नमाज जो है, पांचों नमाज तुम एक ही वक्त में अदा कर दो। इतना बंधन क्यों बांध रहा है? और उसी तरह से कबीर हिंदुओं को भी चुनौती देते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे, जाकी पीसी खाए संसार। तो कबीर दोनों ही तरह के आडंबर का विरोध करते हैं, और यह ब्राह्मण और शूद्र का होना यह एक आडंबर भर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मम सृष्टम, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण कर्म विभागशः, कि गुण और कर्म के आधार पर उनके मध्य भेद होना चाहिए। तो क्या वस्तुतः गुण और कर्म के आधार पर भेद होता है? तो कह नहीं, गुण और कर्म के आधार पर भेद नहीं हो रहा है। यह भेद क्या हो रहा है? ये लोग क्यों डिस्टर्ब हैं भाई? कि क्लास होगी कि नहीं होगी? एक मिनट जरा। ठीक है, चलो, इनको भी मैंने बता दिया कि क्लास हो रही है, अनु को भी बता दिया। तो शिक्षा का मूल मकसद क्या है कि आप समझिए। अब सोचिए कि मंदिर में बैठा हुआ बंदा या मस्जिद में बैठा हुआ बंदा क्या अपने आप को वस्तुतः कृष्ण से ऊपर नहीं मानने लगा है? वह अपने आप को कृष्ण से ऊपर मान लेता है। कृष्ण के मंदिर में बैठा हुआ पंडा अपने आप को कृष्ण से ऊपर मानता है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। लेकिन वह खुद पंडा कैसे बना हुआ, पंडित कैसे बना हुआ है? अपने जन्म के आधार पर। कृष्ण कहते हैं जन्म के आधार पर किसी का वर्ण तय नहीं होगा। और जब कृष्ण ऐसा कहते हैं तो कृष्ण का वर्ण वहां पर जाति शब्द ही है। कृष्ण जाति को ही संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कहां पर था कि क्या जन्म से जो है ब्राह्मण शूद्र होता है कोई? तो कहे कि नहीं होता है। तो क्या सर, हाँ बोलो। मैं एक पर्टिकुलर धर्म से बात नहीं करूंगा, जैसे कि हम मुस्लिम की बात करेंगे या हिंदू की बात करेंगे। तो जो पर्टिकुलर धर्म है उसमें जब जो भगवान का जन्म है वो जाति में ही हुआ है, उसी जाति में, निम्न जाति में नहीं हुआ है। ऐसा भी भगवान मेरे का को जन्म अंदाजा निम्न नहीं जाति में नहीं हुआ है, ये तुमने कैसे जान लिया? जैसे कि हमारे बोलते हैं नबी का जन्म एक सैयद में है, सैयद हमारी सबसे ऊंची जाति बताई जाती है। जबकि राम का जन्म एक क्षत्रिय जाति में हुआ है, कृष्ण का जन्म एक क्षत्रिय जाति में। कृष्ण यादव कुल में हुए हैं। पहले तो अपना करेक्शन कर लो। कृष्ण यादव कुल में, सुन लो मेरी बात, जो कि अपेक्षाकृत निम्न माना जाता है। इसके अलावा सबरी का जन्म जो है भील वंश में हुआ है। हनुमान का जन्म जो हुआ है वह भी इस तरह से अगर देखा जाए तो आज की जाति प्रथा के आधार पर देखा जाए तो वह भी एसटी कम्युनिटी रही होगी, क्योंकि जंगलों में रहने वाले लोग थे। इसी तरह से जो है तमाम और अगर जो है हम जो है जन्मों को देख लें या अवतारों को देख लें तो वह सभी में हुआ है। शूद्रों में भी हुआ है, वैश्य में भी हुआ है, क्षत्रिय में हुआ, ब्राह्मण में, सब में हुआ है। भगवान किसी एक धर्म में नहीं बधे हैं, किसी एक जाति में नहीं बधे हैं। तो जैसे कि अभी जो धर्म बताने वाले हैं वो ऐसा क्यों बताते हैं कि भगवान जो है उसे धर्म में आशीष सर पर क्लास नहीं पढ़े हैं इसलिए ऐसा बताते हैं। तो आइंदा से जब कोई ऐसा बताता हुआ मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आपका एड्रेस दे दूंगा सर। डू सब्सक्राइब टू आशीष सर चैनल। हाँ, ये ज्यादा सही है। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होगा कि सारी समस्याओं का हम लोगों को हल मिल जाएगा और उनकी जो भी दिक्कत हो जाएगी वो दूर हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसी इशू को लेकर के कि और क्या कहते हैं। तो देखिए ये जागरूकता वाला इशू आ गया। ये कहते हैं कि जो कानून है तो कुछ संविधान में जो जिक्र था वो हमने पढ़ लिया। अब संविधान में इसके अलावा भी जिक्र है, और संविधान में इसके अलावा कहाँ जिक्र है जो इन्होंने नहीं दिया है, मैं उसका जिक्र कर दूं, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। मूल अधिकारों के अलावा अगर देखा जाए, मूल अधिकारों में भी ये 14, 15, 16, 17 के अलावा अनुच्छेद 25(2) में भी जिक्र है, आर्टिकल 25(2) में। आप क्या बता सकते हैं कि 25(2) में क्या दिया हुआ है? सूरज, इसमें कहा गया है कि SC ST वर्ग के लिए मंदिर अगर नहीं खुलते हैं तो राज्य खुलवा देगा। मंदिर के द्वार खोलने होंगे। ये कौन बोल रहा है? आर्टिकल 25(2) बोल रहा है। इसके अलावा सारे लोगों को, सिर्फ SC नहीं, वो उसमें नहीं, इसमें मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि बाकी वर्गों के लिए तो खुला है, बंद किसके लिए है? उसमें सर उन लोगों के लिए भी है, जैन, ईसाई, जैन और ये बौद्ध और सिख के लिए भी। नहीं नहीं, इनके लिए नहीं है। 25(2) का उल्लेख SC ST वर्ग के लिए है। वहां पर 25 में ये कहा गया है कि हिंदू धर्म की व्याख्या में आपको जो है जैन और सिख और बौद्ध, ईसाई ने जैन, सिख और बौद्ध को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन वहां पर जब मंदिर के दरवाजे खोलने की बात की जाती है तो पर्टिकुलर उन्हीं लोग के लिए है जो ट्रेडिशनली हिंदू धर्म में है, ना कि उनके लिए जो कि हिंदू धर्म में नहीं है, उन पर ये बात नहीं है। ठीक है, तो 330 से लेकर के 333 तक भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये क्या है? SC ST वर्ग के लिए आरक्षण है। यह आरक्षण कहां पर है? संसद में है। आगे चल करके इसका और अधिक हम लोग जिक्र करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको। आज एक बहुत बढ़िया जजमेंट आया है, आप लोग को जो है उस पर एक डिबेट रखनी चाहिए। आप लोग कब रखना चाहेंगे? और वो डिबेट होगा, ये जो एबॉर्शन, राइट टू एबॉर्शन दिया गया है। जी सर। तो मेरे हिसाब से जो 2 तारीख को आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें आप लोग क्या राइट टू एबॉर्शन पर डिस्कस करना पसंद करेंगे? यस सर, यस सर। ये काफी अच्छा हो सकता है पॉइंट। जी सर। तो सभी लोग राइट टू एबॉर्शन पर जो है जरूर डिस्कस करिएगा। और दूसरा पॉइंट आप लोग ले लीजिए कि उस दिन आप लोग समय तय कर लीजिए कि 2 तारीख को कितने बजे आप लोग करेंगे। एक पॉइंट मेरी तरफ से और ले लीजिए, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों के लिए जो है गूगल मीट का अरेंज कर दूं। जी सर, जी सर। सर इसमें आपको भी रहना पड़ेगा सर, राजनीतिक दल वाले में तो खास करके, चूंकि फिर लोग के अपने अपने जो राजनीतिक विचार हैं वो टकराने लगेंगे। एकदम, कोई केवल मेरा फोटो लगा देना सामने, कोई नहीं टकराएगा। ठीक है ना? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र यार। तो ये 2 पॉइंट आप लोग ले लीजिए, इस पर आप लोग डिस्कस करिए। दोनों अच्छे पॉइंट्स हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है सर, ये जो 330 और 333 आर्टिकल के बारे में आप लिखे संसद में है, इसका थोड़ा एक बारी और बता दीजिएगा सर। अनु पूछ रही हो, किसने पूछा ये? अनु पूछिए। जी अनु सर। 330 से 333 तक के बीच में लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण के बारे में बात कही गई है कि सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी। किसके लिए की जाएंगी? SC और ST वर्ग के लोगों के लिए की जाएंगी। और शुरू में जो है ये केवल 15 साल के लिए था, उसके बाद से ये 10-10 साल के लिए
बढ़ाया जा रहा है। तो अभी हाल में भी 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है अनु? यस सर, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको कि हमको देखना चाहिए। और ये प्रश्न बन सकता है, ये सामाजिक न्याय का बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि हाशिए पर जो वर्ग गया है उसको वापस लाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। आगे चलते हैं, मैं फिर से जो है इसको लेता हूं। अब यहाँ पर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन के लिए लेते हैं। हालांकि इसमें एक प्रश्न अभी रह गया, और वो प्रश्न जो है कल अनुज ने मुझसे बात की थी, और अनुज का ये कहना था कि ये जो केवल कुछ जाति के लोगों को ही क्यों जो है राष्ट्रपति का अंगरक्षक बनने की इजाजत दी गई है। और इसके बाद मैंने इस बात को कहा था कि ये बात गले से नहीं उतर रही है। अनुज? जी सर। और फिर उसके बाद जो है अनुज ने मेरे साथ कुछ पीडीएफ शेयर किया था, लेकिन कल से मेरी जो है हेल्थ सही नहीं है तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। पर जो एक उड़ती नजर मैंने देखा हुआ था, अनुज जरा मेरे को बताइएगा कि उसमें 3 रेजिमेंट के बारे में बात की गई है, 3 जाति के बारे में बात नहीं की। नहीं सर, 3 जातियों के बारे में किया गया है सर, रेजिमेंट का नहीं। अच्छा, उसमें खुली भर्ती, ओपन भर्ती होती है सर। अच्छा, कल जो आपने मेरे को शुरू में भेजा था उसमें रेजिमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। दोनों भेजे सर मैंने अलग अलग, जिसमें कोर्ट केस भी किया हुआ है, और वो भी सर 2018 में सर दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ है। हाँ, मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूँ, तो मैं उसको जो है और फर्दर देख करके मैं। और सर एक और सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे सर अगर ऐसा नहीं होता है कि भेदभाव नहीं होता है, तो सर यूपीएससी में अगर 2 स्टेट से ले सकते हैं हम सर, सॉरी 2 कंट्री से, भूटान और सर नेपाल के लोगों को हम यूपीएससी में ले सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं वो। लेकिन सर भूटान और नेपाल के व्यक्ति यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका कोई अदा नहीं कर सकता, ना ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो सर ऐसा क्यों, ये तो उन्हें बिल्कुल अलग किया जाए, यूपीएससी में भी ना दिया जाए, उनको लिया जाए, और राष्ट्रपति के चुनाव में भी नहीं लिया जाए। नहीं, देखिए, जहाँ पर राष्ट्रपति पद की बात है कि राष्ट्रपति का पद इस देश का संवैधानिक पद है। हाँ सर, संवैधानिक है, लेकिन सबके लिए खुला है ना, कोई भी आ सकता है। हाँ, लेकिन केवल भारत के नागरिक। तो सर यही भारत के नागरिक यूपीएससी में भी होना चाहिए ना, कि सर भारत के नागरिकों के लिए ही आईएएस यूपीएससी सब होगा। वो सर उसमें उनको ले लेते हैं, लेकिन चुनाव में उनको पीछे हटा देते हैं। ये तो सर भेदभाव ही है ना। पहली चीज तो जो है, क्या कह रहे हैं सूरज आप? ये तो समझौता के तहत है ना सर, भारत भूटान और भारत नेपाल के बीच में जो समझौता है राजशाही के साथ। मुझे उसके पीछे मैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि पर जा रहा हूँ कि पहली चीज तो ये समझिए कि जो समानता का अधिकार है वह भारत के नागरिकों को है। अनुच्छेद 15-16 में 19, 29, 30 में जो बातें कही गई हैं वह केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। हम समानता पहले भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, विदेशियों के लिए हम सुनिश्चित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यह हमारी मर्जी पर होगा। तो हम करना चाहे तो हम कर देंगे, हम नहीं करना चाहे तो हम नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव में नहीं कर सकते सर, वो नागरिक के लिए ही है। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में विशिष्ट नहीं, अभी इस पर पूरा करने दीजिए, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। राष्ट्रपति का चुनाव चूंकि भारत का सर्वोच्च पद है और वह भारत की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए किसी विदेशी को नहीं दे सकते। लेकिन एक आईएएस की नौकरी या एक जो है आयोग में जो है किसी की नौकरी, वह भारत की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो हम उसे नहीं देंगे। फिर अनुज, जब भेदभाव को रोकने की बात हुई
तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14 की दो भाषाएं हैं। पहली भाषा ये कहती है कि विधि के समक्ष समता, कि कानून की नजर में हर कोई समान है, और विधि का समान संरक्षण, कि कानून सबको एक बराबर संरक्षण देगी। लेकिन जब बात ये होती है कि एक समान संरक्षण देना है, तो वो ये भी वहां पर एक्सप्लेनेशन है कि समान परिस्थितियों में समान पर संरक्षण होगा, जबकि असमान परिस्थितियों में असमान संरक्षण होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला कहीं पर काम से जा रहा है और उसको रोक दीजिए आप, या उसके कंधे पे आप हाथ मार दीजिए ऐसे, आप तुरंत अंदर होंगे। लेकिन वहीं पर एक सामान्य व्यक्ति जा रहा है और उसके पर जो है पुलिस वाला ऐसे हाथ ठोक दे, अब पुलिस वाला अंदर नहीं होगा। तो ये डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि पुलिस को अपना काम करने के लिए थोड़ा ज्यादा जो है उसको जो है फ्रीडम चाहिए। हाँ महेश बोलिए। हेलो। हाँ महेश। हाँ सर, मैंने आपके पास एक दिन भेज जाता हूँ यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट की कट ऑफ, उसमें 330 सीटें थी, और उसमें एससी की जो 16 सीट है जो उसमें EWS के अंदर कन्वर्ट कर दी गई। हाँ यार, फिर मेरे दिमाग से उतर गया, मैं लगातार बिजी रहता चला गया। उसमें सीधा एक मतलब सीधा 17 सीटों का नुकसान हो रहा है एक मतलब एक वर्ग को। और वहां पर है जो जब यूपीएससी ने 2020 की कट ऑफ ली है वो बिल्कुल सही तरीके से ली है, यानी कि 19 की तो बाद में दिया है उन्होंने, एग्जाम के बाद में सारा काम कंप्लीट हो गया उसके बाद में, और 20 की पहले दे दी कट ऑफ। तो अगर उसमें सर देखिए, ये इस बार मामले में जब आप अनुच्छेद 15(4) को पढ़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पर। तो 15(4) में ये कहा गया कि जब भी इस तरह की कट ऑफ या आरक्षण की बात की जाएगी, तो कट ऑफ या आरक्षण के लिए जो आधार लिया जाएगा वह एक तो बैकडेट से नहीं लिया जाएगा, और नंबर 2 है कि वह जो है मनमाना नहीं होना चाहिए, नंबर 3 कि उससे सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं यह है कि यूपीएससी ने इस तरह का काम किया हुआ है, तो नो डाउट फिर वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। नहीं सर, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसके अंदर, यानी कि जिसमें 220 सीटें हैं जाएंगे तो खारिज होगा, वो खारिज जी जी, वो फंडामेंटल जिसमें राइट्स है, और कोर्ट जिसमें 200 भी नहीं बचा पाएगी। हाँ, जिसमें 210 सीट है उसके अंदर 30 सीटें मिल रही है, और जिसके अंदर 330 सीट है उसके अंदर भी 30 ही मिल रही है, 30 से भी कम। हाँ, तो फिर उन्होंने कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है, तो उसको जबकि 48 या 49 सीटें होनी थी, और जबकि ओबीसी की सेम सीटें हैं। इसका जब नतीजा आएगा ना, तो उसके बाद इसको नए सिरे से चैलेंज किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का नतीजा पहले आ जाए, जी जी, है ना, ईडब्ल्यूएस का नतीजा आ जाए। और रोस्टर के कारण भी होता है सर, ये क्या करते हैं, रोस्टर के वजह से भी होता है। मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट का वैकेंसी होगा, वहाँ के रोस्टर में वो सीट नहीं आ रहा होगा एससी के लिए, तो फिर एससी के लिए एग्जाम है, जब डिपार्टमेंट के अंदर कुछ होगा रोस्टर तभी अप्लाई होगा, जब ओपन नहीं वो तो जी जी, वो तो पर्सनल है, ये रोस्टर के हिसाब से किया जाता है सर, रोस्टर में ही परसेंटेज को समायोजित किया गया। नहीं, रोस्टर प्रणाली कब लगती है यार? रोस्टर प्रणाली तब लगती है कि जैसे कि कोई टोटल मान लो एक यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में जो है कुल मिलाकर के 100 पद आए, तो 100 पदों में जो है वह आपको जो है आरक्षण इतना % रखना है। लेकिन जब उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में सीधा सीधा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही पद आया हो। तो जब अगर एक ही पद आया तो वह पद लिस्ट हो जाएगा, तब वहां पर रोस्टर प्रणाली अप्लाई होती है। लेकिन ये कहिए कि ओपन भर्ती है यूपीएससी की और वो कहेंगे कि हम रोस्टर प्रणाली देंगे। सर अब हर एक भर्ती में अब सर यही जो भी जिस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज सीट आता है, और उसमें भी रोस्टर वाइज होता है सर। तो वो सर में रोस्टर वैकेंसी में रोस्टर नहीं ऐड होता है, ये बात बहुत कायदे से समझिए।
अगर टोटल में वो रोस्टर प्रणाली लगाने लगे, ये आर्टिकल 15.4 और 15.5 को अगर आप उठा करके पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया भी है, तब तो रिजर्वेशन के मोटिव को ही वो डिफीट कर देंगे। और वो इसलिए भी डिफीटेड होगा क्योंकि आप ये समझिए कि लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में बैकलॉग पड़ा हुआ है। एक सर मैं बताना चाहूंगा सर, जैसे अभी रिजल्ट आया यूपीएससी का, रवि कुमार सियाल जो सर 18वीं रैंक लेकर आए सर, उनको अभी भी ईडब्ल्यूएस का कोटा दिया गया है, जबकि वो 2018 से भारतीय लेखा सेवा में थे और उसके बाद 2019 में भारतीय रेल सेवा में थे, तो सर वो ये ईडब्ल्यूएस में रहेंगे। उनके पिताजी के आधार पे कैलकुलेशन होता है ना कि उनके आधार पिता के आधार पर तब तक होता है जब तक जॉब नहीं लगती है। अब तो वो जॉब में थे 2018 से। नहीं अनुज, इसका सीधा से नियम है, परिवार की आय देखी जाती है, परिवार सर उसके पिता और बेटा दोनों शामिल है ना। हाँ सर, लेकिन एक रेड का अफसर बन गया सर, उसके बाद तो ईडब्ल्यूएस पे बाहर हो जाएगा। वो 1 साल की नौकरी के बाद बाहर होंगे। 1 साल की नहीं, 18 से सर वो 2021 में अभी सर उसमें आया है। तो गलत 18 में सर वो भारतीय लेखा परीक्षा में थे सर। चैलेंज किया जाना चाहिए, वो क्वेश्चनेबल नहीं सर, ये हमेशा से चल रहा है सर। क्या चलिए, अगर ये मतलब जो गलत है, बहुत गलत है ये। ईडब्ल्यूएस में उनको कैसे मिल जाएगा? एनसीएल भी हम लोग का बनता है सर, उसी आधार पे बनता है कि अपने पिताजी के पिताजी और मतलब उस परिवार पिताजी के आधार पर तब तक रहता है जब तक वो जॉब में ना। वो तो एक ग्रेड का अफसर है, फर्स्ट क्लास अफसर में पहुंच गया है। नहीं बिल्कुल 2018 से भी रहे। क्या करें, सिर्फ कास्ट तो इनकम 1 करोड़ रुपए पर मंथ भी रहेगी तब भी उनको काउंट किया जाएगा अगर उनके पिताजी की आय एक बात सूरज बड़ी चीज समझो, उसकी सालाना आय कितनी होगी? सालाना आय तो उसकी काफी ज्यादा होगी। समझ पाऊं कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। अगर इनका जो अनुज का कहना है कि सिहाग वाले केस में, तो सिहाग में ईडब्ल्यूएस है जिसमें कि वार्षिक पारिवारिक आय देखी जाती है, और एक उसमें जो है 3 साल का एवरेज दिया जाता है। तो सर एक ग्रेड अफसर का अगर हाँ एक ग्रेड का अफसर है तो एक ही साल का जो है एवरेज उसका 3 साल को पूरा कर देगा, संभव नहीं जी सर, संभव नहीं है। तो वो नो डाउट कोई चैलेंज सर उसका शर्त में पढ़ा हूँ सर, उसमें सीधे तौर पे परिवार के परिभाषा में लिखा है सर कि माता पिता और जो मतलब 18 साल से कम के भाई बहन उनको परिवार में शामिल किया है, ना कि खुद इस कैंडिडेट को। परिवार का, लेकिन उनकी अगर आय की बात 18 साल से कम के भाई बहन, उनका 5 लाख तक को जो होता है ये ईडब्ल्यूएस में आते हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख से कम हो, लेकिन उनकी तो अगर अकेले उनकी देखी जाए तो उनकी 1 साल की इनकम बैठती होगी 7-8 लाख रुपए, अगर उनको जोड़ना ही नहीं है, अलाउंस ना मिले नहीं उनको जोड़ना ही नहीं। अगर मान लीजिए कि कानून में ये नहीं भी लिखा है, क्या कानून में ये लिखा है कि उस व्यक्ति की इनकम को हटा दिया जाएगा? उनके सबसे पहले तो सर जो पढ़ाई के लिए स्थितियां रही सर वो उनके गार्जियन के हिसाब से। सूरज मेरे प्रश्न का बस इतना सा जवाब दीजिए, क्योंकि आप जिस बात में कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस के बहस को हम और लंबा ले सकते हैं, अभी ये भी बहस गई थी। पहली चीज तो ये समझिए कि क्रीमी लेयर में तो जो है हमको हटाना पड़ेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में भी फाइनल जजमेंट नहीं आया, लेकिन अपने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिकली वीक होना एक सडन कॉज हो सकता है, वह एक परमानेंट कॉज नहीं है, और किसी की भी इनकम। और दूसरी चीज ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 में क्या मैंने आपको घूंघट उठाने का सिद्धांत पढ़ाया है सूरज? जी सर। घूंघट उठाने का सिद्धांत क्या बोलता है? कि उस मतलब जो भी मुद्दा है उसके इतिहास में भी जाके उसके बारे में पूरा तहकीकात करेंगे तभी किसी नतीजे में। प्रयोजन क्या है कानून का वो समझना होगा। 2018 में जो ए ग्रेड का ऑफिसर है 2021 में भी उसको गरीबी रेखा के नीचे मान लिया जाए, या फिर जो गरीबी रेखा की परिभाषा बनाई गई जॉब्स में रिजर्वेशन देने के लिए, उसके नीचे माना जाए, ये कहां तक जो है वैलिड है?
हमें कानून के सर उनकी शिक्षा, हाँ बोलिए। उनकी शिक्षा दीक्षा तो उनके पिताजी के समय हुई ना सर, उनके पिताजी उनकी शिक्षा दीक्षा कराए। अब अगर वो अपने काबिलियत के भरोसे किसी एक मिनट, पोजीशन हाँ पे हाँ, जाते इस हो। पॉइंट को भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पिताजी जब तक वो 12वीं तक पढ़े तब तक बहुत गरीब हालात में थे, लेकिन 12वीं के बाद जब तक वो ग्रेजुएशन में आते हैं तब तक उनकी लॉटरी निकल जाती है 25 करोड़ की, और अब वो 25 करोड़ की लॉटरी के साथ ग्रेजुएशन से लेकर के पीजी सर, तक पढ़ करके अनुज एक मिनट, अब वो पीजी तक जाते हैं, क्या अभी भी उनको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आप देंगे? नहीं सर। तो अभी आपका पिछला वाला तर्क यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई है? अभी सर मैं एक बताऊंगा सर, हाँ। जैसे सर कोई गवर्नमेंट जॉब में लड़का चला जाता है तो उसके डिपेंडेंट उसके माँ बाप उसके ऊपर हो जाते हैं, ना कि माँ बाप के ऊपर वही रहता है। मेरे माँ बाप अभी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है सर, मेरी सिस्टर भी जो अनमेरिड है, जो मेरा भाई 18 साल का है वो भी, और मेरे मम्मी पापा वो सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक पिताजी आपके जीवित हैं, जब मैं जॉब में आने से पहले अपने पापा पर डिपेंडेंट था, पिता पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब मेरे माता पिता मुझ पर डिपेंडेंट है। और सर रवि कुमार सिहाग 2018 से उसके माता पिता खुद उस पर डिपेंड हो गए थे। नहीं, मैं सिहाग वाले केस में सूरज के जो है बयान से जो है मैं सहमत नहीं हूँ। अनुज, मैं आपके बयान के साथ जाऊंगा, गलत है वो, उनको ईडब्ल्यूएस का फायदा सर मैं तो सरकार के ही, बिहार सरकार का मैंने वो देखा था सर, मतलब जो प्रोफोर्मा है उसमें ये बात सीधे तौर पे लिखी गई है कि परिवार की परिभाषा में उसके माता पिता और 18 साल से कम आयु के भाई बहन शामिल होंगे, सीधे तौर पे लिखा हुआ है। सर तो ही नहीं। सूरज वह टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है जी सर। उसमें कहीं पर भी ये लिखा गया कि वह व्यक्ति स्वयं शामिल नहीं होगा। सर अभी तक मुझे जितना मानना है, जिस तरीके से भाषा है सर उससे साबित होता है कि उसमें वो नहीं है। फायदा मिला था उसके माता पिता को, भाई बहन को, वो रवि कुमार सिहाग की वजह से मिला था। अगर उसके नाम पे कोई संपत्ति है जिससे अर्निंग हो रही है तो उसके पिताजी की संपत्ति जो उसके जो मिली हुई है। सूरज ये गलत बात कर रहे हैं आप। अगर इस तरह से लिखा भी गया है तो हमें घूंघट उठाने का सिद्धांत आर्टिकल 13 वहां पर अप्लाई करना होगा। सर सूरज खुद सूरज को पता होगा, अभी जो डिपेंडेंट कार्ड बना हुआ उसके माता पिता और इसका जो 18 साल से छोटा भाई और सिस्टर अनमैरिड होगी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सर कोई भी शामिल नहीं है, जब तक पिताजी जिंदा है तब तक कोई भी डिपेंडेंट नहीं। मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हमने डिपेंडेंट कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड भी डिपेंडेंट हमारे मिले हुए हैं, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो श्रम कानून भी बने हैं, आप सुनिए सूरज, जो श्रम कानून भी बने हैं उन श्रम कानून में भी ये है कि आपके वजह से अगर आप जॉब में हैं और आपका कोई हेल्थ कार्ड वगैरह बनता है तो उसमें आपके माँ बाप को आपके ऊपर डिपेंडेंट माना गया है। अभी सर रेलवे वारंट मिलता है, वो भी सर डिपेंडेंट मेरे माँ बाप को मेरी वजह से मिलता है। और सर अभी जो आयुष्मान कार्ड बने हैं सर वो भी मेरी वजह से मैं शेयर भी कर सकता हूँ उन्हीं सभी को। मैं इसके भी पास है, इनके भी सब डिपेंडेंट इनके ऊपर, इनके बच्चे भी और इनके मम्मी पापा भी और अनमैरिड सिस्टर भी और 18 साल से छोटा भाई भी, वो सब इनके ऊपर डिपेंडेंट आ जाते हैं। मुझे लगता है कि सूरज यहाँ पर भावनाओं में जा रहा है कि माँ बाप मेरे ऊपर कैसे डिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं सर, भावनाओं में नहीं सर, मुझे रेलवे नहीं मान रहा, किसी को डिपेंडेंट मान ही नहीं रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा मुझे तो। बस सिर्फ रेल के जो भी मतलब ये हेल्थ फैसिलिटीज हो या फिर ये यात्रा के लिए ट्रेवलिंग फैसिलिटीज हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिल रहा, बाकी मेरे किसी, जब तक पिताजी जिंदा है तब तक किसी को नहीं मिल रहा। उसमें सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि मतलब अगर माता विधवा हो और भाई जो मतलब एजुकेशन के दरमियान हो और 21 साल से बड़ा ना हो, उस स्थिति में ही उसको लाभ मिलेगा। और बहन वो अगर अविवाहित हो या फिर वो मतलब परित्यक्त हो, मतलब जो कहते हैं सर ये छोड़ दिया, डाइवोर्सी हो और पिताजी जिंदा ना हो, तभी वो लोग डिपेंडेंट माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे सर। ये तो रेलवे मुझे ऐसा हो सकता है उनके पॉलिसी हो सकती है यहाँ पर ज्यादातर जैसे श्रम कानून वगैरह मैं बता रहा हूँ वहां पर माता पिता को, जो रिटायर्ड माता पिता होते हैं उनको डिपेंडेंट माना गया है ना। वृद्ध माता पिता कहाँ जाएगा अगर वो डिपेंडेंट नहीं होगा तो?
सर यहाँ पे मैं कुछ कोट कर सकता हूँ? नहीं मत करो, रहने दो, जब नौकरी पाई जाना तब करना, ठीक है। तो जो रवि सिहाग वाला केस है वो अगर लॉजिकल भी देखा जाए तो अगर कानून किसी ने लिख दिया तो क्या कानून वर्ड बाय वर्ड चलेगा या कानून जो है लॉजिक के हिसाब से चलेगा? मैंने ये मान लिया कि कानून में ये लिखा हुआ है तो भी गलत है, नहीं हो सकता। और वो जो आइडिया है ईडब्ल्यूएस का उसको भी वो डिफीट कर रहा है, तो नहीं होना चाहिए, गलत है। अरे सर जैसे डॉक्यूमेंट वो सब जॉब में आ जाएंगे, रवि कुमार सिहाग जॉब में आने के बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे उनका होगा, उस तहसीलदार को सर और उस एसडीएम को भी पकड़ा जाना चाहिए जिन्होंने उसका ये डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी किया है, क्योंकि कर ही नहीं सकता है जब उनके लिए इनकम उनको पता है कि 7 लाख से ऊपर चली गई है, 5 लाख से अबव होने के बाद ये ईडब्ल्यूएस में नहीं रह सकता है। जांच होगी तो जरूर पकड़ में आएंगे, जांच होगी तो ये जरूर जाएंगे। और अगर ऐसा कानून नहीं होगा तो भी अगर कोर्ट में चैलेंज होगा तो ये जाएंगे। ये तो सीधे सीधे कानून का मजाक बनाने की बात हुई है कि ए रैंक के अधिकारी को जो है आप जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दे देंगे, ये तो गलत है यार, ठीक है ना। अब यही देखना होगा कि 3 साल के औसत को वो कैसे पूरा करा रहे हैं, तो दैट इज अप टू देम। चलिए आइए वापस जो है इशू पर लौटते हैं, ठीक है। अनुज बस आपका वही एक इशू मेरे ऊपर बाकी रह गया है जो आपने अंगरक्षक वाला पूछा है, मैं उसको एक बार पूरा पढ़ूंगा आजकल में, तभी मैं करूंगा। मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं, मैं तो दवा खा के बैठा हूँ। अब यहाँ पर जो है, अब देखिए क्या हुआ, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, ये कहाँ पर हिस्सा चला जाता है? ये आपका चलता है डीपीएसपी पर चलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर चलता है, ठीक है। तो डीपीएसपी पर चल रहा है कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। तो बहुत सारी होती है, जैसे कि दलितों के लिए जो है सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, कराई जाती हैं, लगभग हर जिले में बनती हैं। खासतौर से इनको अम्बेडकर हॉस्टल्स बोलते हैं, ज़्यादातर जगहों पर यही नाम दिया गया है। दिल्ली में जो है गांधी छात्रावास भी जो है वह दलितों के लिए है। इसी तरह से उनके लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनको जो है आवास सुविधाएं भी दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से मैं बता सकता हूं आप लोग को कि कांसीराम आवास योजना का जो है चलाई गई है, जिसमें सिर्फ दलितों को जो है मिलता है। अब कांसीराम आवास योजना के साथ साथ जो है मायावती आवास योजना भी जो है चलती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये चल सकती है, लेकिन जहां पर जो है चीफ मिनिस्टर वगैरह जो है दलित पॉलिटिक्स की वजह से आए हैं, वहां पर इस तरह की योजनाओं को ज्यादा गंभीरता के साथ लागू किया गया है। जहां पर बीजेपी या कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही है, वहां पर कंपैरेटिवली उतनी जो है गंभीरता के साथ नहीं किया गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि तमाम बुराइयों के बावजूद भी लालू, मुलायम या मायावती जैसे लोगों का भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में अहम योगदान है, उसका सिर्फ मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी तरह से आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आरक्षण की नीति किस तरह से काम करती है, इस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि आरक्षण यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया है। तो मैं आरक्षण को डिस्कस करूंगा आगे। दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, तो यहाँ पर जो है ये एक केस स्टडी लाते हैं, सच्ची घटना पर आधारित यह केस स्टडी है, इसको पढ़िएगा। तो इसमें कहते हैं कि एक जो है जकमालगुर गांव के लोग, ये कहाँ पर है भाई, पता नहीं कहाँ पर है, तो वो लोग तैयारी में जुटे होते हैं। स्थानीय देवता की पूजा की जाती है और आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक दलित समुदाय का जो व्यक्ति होता है वो पुजारियों के पैर धोता है और उन्हीं पानी से वह नहाता है। जकमालगुर के गांव के रहने वाले लोग इस काम को करते हैं। रत्नम का परिवार जो है इसमें लगा हुआ है, रत्नम दलित परिवार से है।
उसके माता पिता और दादा भी यही काम कर रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से मना कर दिया। वह कहा कि इस संस्कार में वह विश्वास नहीं करता क्योंकि उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। रत्नम के इनकार से ताकतवर जातियां तो नाराज हुई ही, उसके अपने समुदाय के लोग भी खफा थे। ऊंची जाति के लोगों को जो है इस बात की नाराजगी थी कि दलित होकर के कम उम्र का कैसे मना कर दे रहा है, और वो लोग मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई बिगाड़ देती है। रत्नम की जात के लोग इसलिए खफा थे कि जो प्रभावशाली वर्ग है वो उनसे खफा हो जाएगा। ताकतवर जो जातियां थी वो रत्नम को सबक सिखाने की ठान लेती हैं और उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क न रखा जाए। रात को कुछ लोगों ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा निकल करके भागा। उसने SC/ST एक्ट 1989 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में नहीं खड़े हुए, वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो रत्नम जैसे ही अंजाम को वो भी जो है भुगतेंगे। लेकिन इस घटना को मीडिया ने हाईलाइट किया। तब गोदी मीडिया नहीं होती थी, वरना गोदी मीडिया होती तो निसंदेह रत्नम को ही गलत साबित कर देती। ठीक है ना। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन परिवार को जो है गांव छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि SC/ST एक्ट है क्या। SC/ST एक्ट को मैं यहां से पढ़ाने के बजाय मैं आप लोग को एक दूसरी स्लाइड में ले जाऊंगा। ठीक है। अनुच्छेद 17 यही जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये 1955 में पारित किया गया था, जिसे 1976 में संशोधित कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार संज्ञेय अपराध माना गया था अस्पृश्यता को। संज्ञेय अपराध की मैंने परिभाषा दी है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ये जो अस्पृश्यता का एक खिलाफ कानून बनाया गया, यह न सिर्फ संज्ञेय अपराध था बल्कि यह अप्रसम्य अपराध भी है, असमाध्येय अपराध भी है। तो क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि अप्रसम्य या असमाध्येय अपराध हम किसे कहेंगे? Someone would love to help me? कोर्ट के बाहर जिसके केस को सुलझा नहीं सकते। हाँ, कोर्ट के बाहर दोनों पार्टियां जब आपस में समझौता करके किसी मुकदमे को खत्म कर देती हैं, किसी केस को खत्म कर देती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समाधेय, मतलब कि या प्रसम्य। प्रसम्य का मतलब होता है बुझा दिया जाना, खत्म कर दिया जाना। समाधेय का मतलब कि दो लोगों ने आपस में मिल करके जो है उसका नतीजा निकाल दिया और कोर्ट उसको मान लेती है। लेकिन जो गंभीर अपराध होते हैं वो असमाधेय होते हैं, यानी कि मुकदमा दर्ज कराने वाला चाहे भी तो मुकदमा वापस नहीं ले सकता है। हालांकि हमारे यहाँ कोर्ट से लेकर के पुलिस अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो SC/ST एक्ट में समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है गलत है। ये थोड़ा ऊपर चलो भाई। तो ये क्या हुआ कि इसको अप्रसम्य और संज्ञेय अपराध दोनों की श्रेणी में रखने की कोशिश की गई। अब यहीं पर CRPA मतलब सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल का मतलब नागरिक, राइट्स मतलब अधिकार, प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण और एक्ट का मतलब अधिनियम। तो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट
ये कहता कि इस मसले में जब भी कोर्ट में जाएगा तो लंबी डेट नहीं लगेगी बल्कि तत्काल सुनवाई होगा। SC ST समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए और लोगों को जो है तुरंत सहायता देने के लिए इस एक्ट में काफी कुछ जो है बातें शामिल की गई कि लोगों के साथ किसी तरह का गलत अत्याचार वगैरह ना हो। बाद में इसी को 1989 में SC ST एक्ट का एक नाम और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो है इसको पारित किया गया। इसमें SC ST एक्ट 2015 का मूल उद्देश्य क्या था? इसमें जो है अत्याचारों की रोकथाम, जो SC ST एक्ट के साथ जो है तमाम जो है जातिगत आधार पर अत्याचार होता है उसकी रोकथाम के लिए जो है प्रबंध करने के बारे में बात कही गई। ठीक है, और इसमें जो है यह भी कहा गया कि जो अपराध हैं उनको परिभाषित किया जाए। तो SC ST एक्ट के तहत जो अपराधों की लिस्ट बनाई गई वो बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं, जैसे कि इस जाति के लोगों के सिर व बाल को मुड़वा दिया जाता है, तो कहा गया कि नहीं साहब ये गलत है, ये अपराध में माना जाएगा। इसी तरह से अगर इस एक्ट में ही आप देखिए तो जूते की माला पहनाना, इस वर्ग के लोगों को जो है लोग अत्याचार के तहत जूते की माला भी पहना देते हैं। सिंचाई सुविधाओं से वंचित करना, वन अधिकारों से वंचित करना, मानव और पशु कंकालों तथा मृत शरीरों को ढोने के लिए बाध्य करना। तो ये सब कह रहे हैं कि ये सब जो है गलत है, ये सब आप लोग नहीं करेंगे, ये मनाही है। इसके अलावा कब्र खोदने के लिए बाध्य करना, सिर पर मैला, ये मेला नहीं है, मैला ढोने की प्रथा और अनुमति प्रदान करना। तो कह रहे कि आप ये भी मत करिएगा साहब कभी भूल चूक से। इस वर्ग की महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, पहले जब देवदासी परंपरा होती थी तो इसमें दे दिया जाता था। जाति सूचक गाली देना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, ये भी इसमें शामिल है। जैसा कि अभी रत्नम के परिवार में देखा, मल मूत्र खाने के लिए बाध्य करना, चुनाव में नामांकन से रोकना, महिलाओं को जो है उनका वस्त्र छीन करके उनको नंगा घुमाया जाना, इस वर्ग के सदस्यों को घर, आवास और गांव छोड़ने के लिए बाध्य करना, इस वर्ग की पूजनीय वस्तुओं को विरूपित करना, यौन दुर्व्यवहार, ये तमाम चीजें जो है इसमें शामिल की गई हैं। इसमें न सिर्फ अपराधों की लिस्ट बनाई गई बल्कि जो अधिकारी जांच करेंगे उनके लिए भी काफी कुछ कहा गया। तो आइए जरा देखते हैं कि इनके लिए क्या बातें कही गई है। इनके लिए कहा गया है कि आहत करने और धमकाने पर प्रतिबंध रहेगा, मामलों का तेजी से निपटारा करिए, प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति दी गई है और जानबूझ करके ढिलाई की स्पष्ट रूप से परिभाषा दी गई। तो इस तरह से SC ST एक्ट को जो है पूरी तरह से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो ये जो है मैं PDF आप लोग को दे दूंगा, आप लोग इससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है उतना स्पष्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। हाथ से मैला उठाने का, तो ये भी इन्होंने एक लिस्ट दिया हुआ है कि ये हाथ से मैला उठाने का कलंक, आज भी हमारे समाज में जो है ज्यादातर ये काम यही लोग करते हैं, ठीक है। आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम, तो इसमें जो है बहुत अधिक जो है जानकारी नहीं है। जब पेशा एक्ट पढ़ेंगे तो इसकी क्लियरिटी आएगी, तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से निवारण करने का काम किया गया है। तो कानून बना करके, जागरूकता फैला करके और सीधे सीधे संविधान में इनको अधिकार दे करके, आरक्षण आदि का प्रावधान करके हाशियाकरण से निपटने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो है केवल इतने ही बिंदु थे आज के लिए। कल से हम लोग क्लास 9 की NCERT को शुरू करेंगे, जो कि और गंभीर हो जाएगी। तो 6, 7, 8 कंप्लीट हुई, 9, 10, 11, 12 कुल मिलाकर के 6 बुक हम लोग को और करनी है। तो उसमें हम लोगों को थोड़ा और जो है ज़्यादा गंभीरता के साथ होगा। तो क्लासेस का टाइम अब तकरीबन 2 घंटा कर देंगे। ऑल डन।
किसी का कोई सवाल? नहीं? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। कल की क्लास को मैंने अपलोड कर दिया था, फिलॉसफी वाली क्लास बाकी है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। फिलॉसफी की क्लास 9:15 बजे अपने उसी पुराने लिंक से ही करेंगे।